Today we will do mixed revision from history, civics, geography. Means today we will revise the subject social science. Not like this history या फिर geography या फिर civics. So let's start with geography lesson 1 resources. First is resources unevenly distributed. Why? What's the reason? Why resources are unevenly distributed? Land surface is not same and different areas, जैसे कि हम कहेंगे mountainous regions, there are we can say कि वहाँ पे forest है, ठीक है. अगर हम plateau regions में जाएं तो वहाँ पे minerals हैं. अगर हम कहें कि हम जाएं इधर पंजाब में आए तो पंजाब के अपने हर एक स्टेट के हर एक अकॉर्डिंग टू द लैंड सरफेस ये सब अगर हम कहेंगे ना कि रिसोर्सेज दे आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. मेन रीजन इज रिलीफ, climate. These are the main reason behind this. The land surface is not same, so that's why resources are unevenly distributed. Next is, what do you mean by stock of resource? Amount of resources available for use. Amount of resources available for use is known as stock of resource. What is resource conservation? To use the resources in a judicious manner. We should use the resources in judicious manner. We should not waste them. We should conserve them for the future generations. Otherwise, future generations will have to face lots of problems if we use the resources in a careless way. We do not bother about the coming generations. Then coming generations, future generations, they will have to face lots of problems. So for them, we should conserve the resources. We should use them in judicious manner. We should not waste them. As stock of some resources is limited. Human resource क्यों important है? It's the only human beings who with their skills and knowledge change the resources into a useful product. Human beings add the value in the product. For example, ये आप मक्के के नीचे बैठे हो, हम कहेंगे मिनरल्स थे ये, तो वहां से ह्यूमन बींग्स ने क्या क्या नहीं बनाया, इलेक्ट्रिकल गुड्स बनी, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनी, है ना. आप बेंच पे बैठे हो, अर्लियर हम कहेंगे कि ये वुड थी फॉरेस्ट में, वुड को कन्वर्ट किया किसमें, फर्नीचर में. तो अपनी स्किल एंड नॉलेज से अपने आप तो बन नहीं गए, फर्नीचर तो अपने आप बन नहीं गया. यू आर हैविंग कॉपी इन योर हैंड, तो ये तो था वुड पल्प इन द फॉरेस्ट. वुड पल्प अपने आप तो कॉपी बन के आ नहीं गया. वुड पल्प से पेपर बना, पेपर से फिर प्रिंटिंग प्रेस भी ह्यूमन बींग्स ही लेके आए. गुटनबर्ग की फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस आई थी जर्मनी में. तो ह्यूमन बींग्स ही हैं जिन्होंने अपनी स्किल एंड नॉलेज से यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाए, उन्होंने वैल्यू ऐड की. ये वुड पल्प होता तो कोई वैल्यू ना होती. आपके पास इरेजर है, रबर लेटेक्स से बना एक मिल्की प्रोडक्ट जो ट्रीज में से निकलता है, उससे बना रबर. तो इट मीन्स जो जो चीजें हमारे पास हैं, ठीक है ना, ह्यूमन बींग्स ने अपनी स्किल के साथ अपनी नॉलेज से उसे उसमें वैल्यू ऐड की और लाइफ को कंफर्टेबल किया. मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज एन एग्जांपल. तो लाइफ कंफर्टेबल हो चुकी है ओनली बिकॉज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. What do you mean by sustainable development? Balancing the need to use resources, balancing the need to use resources and also conserve them for future generation is called
sustainable development, balancing the need of resources, balancing the need to use resources and to conserve them for the coming generations or future generations is known as, क्या कहेंगे उसे, sustainable development, is known as sustainable development. Next is, which one of the following not make substance a resource? Listen carefully. Utility, value, quantity. Very good. Quantity. Which one of the following is human made resource? अब आप सोचना कि ह्यूमन मेड रिसोर्स कौन सा वाला. लिसन केयरफुली. स्प्रिंग वाटर, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, फर्नीचर. Complete the statement. Non-renewable resources are, listen the options carefully, those which have limited stock, made by human being, derived from non-living things. Those which have renewable resources can be renewed. Non-renewable cannot be renewed. To learn these types of questions, principles of sustainable development, respect and care for all forms of life, respect and care for all forms of life, improve the quality of human life, improve the quality of human life. Next, एक एक करके सारे चैप्टर्स करते हैं. Now come to history. Come to history lesson. Wait. Lesson 1. Periodization. How, what and when wala chapter. James Mill. He was Scottish economist. He divided history into 3 parts. कौन कौन से 3 पार्ट्स हैं? सबसे पहले उसने कहा हिंदू पीरियड, देन ही सेड मुस्लिम पीरियड, देन ब्रिटिश पीरियड. ही डिवाइडेड हिस्ट्री इनटू 3 पार्ट्स. तो उसकी ये पीरियडाइजेशन जो थी ना, ही गेव इंपॉर्टेंस ओनली टू द रिलीजन ऑफ द रूलर. ही इग्नोर्ड द रिलीजन ऑफ द कॉमन पीपल. क्या एंशिएंट पीरियड में सारे हिंदू रूलर्स थे? नो, देयर वर. आप अपने आप सोचो, अशोका किस रिलीजन को में बिलीव करता था? बुद्धिज्म. पता है ना? चंद्रगुप्त मौर्य जैनिज्म में करता था. तो डिफरेंट रूलर्स थे, दे फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स. तो इन्होंने सबको ऐसे बांट दिया. एंड क्या उस एंशिएंट पीरियड में सारे लोग जो थे वो हिंदू रिलीजन में ही बिलीव करते थे? नो. इट मीन्स कहीं ना कहीं जेम्स मिल इग्नोर्ड द रिलीजन ऑफ द कॉमन पीपल. नेक्स्ट, मुस्लिम. ही कॉल्ड मुस्लिम पीरियड, सेकेंड मेडिवल पीरियड को. नो डाउट रूलर्स जो थे मोस्टली मुस्लिम ही आए हैं. तो क्या वो सारे जो थे, जो मुस्लिम्स आए, क्या उस पीरियड में कोई भी हिंदूस नहीं थे? बीच में शेरशाह सूरी नहीं आया था? क्या बीच में हम कहें गुजरा प्रतिहारा, दंती दुर्गा, ये सब आए ना? ये भी तो आए हैं लोग. तो ये लोग जो देवी देव मंदिर बनाते थे, जैसे राष्ट्रकूटास ने मंदिर बनाए, है ना, गुजरा प्रतिहारास ने बनाए, तो ये लोग मुस्लिम्स थोड़ा थे. तो कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि जेम्स मिल की जो डिवीजन थी ना, दैट वाज नॉट एक्यूरेट, वो गलत थी. उसने ब्रिटिश मॉडर्न पीरियड को सारा ब्रिटिश पीरियड कह दिया. मींस वो क्रेडिट लिया उसने कि जो सोसाइटी में मॉडर्निटी आई, जो भी जैसे इविल्स खत्म हुए, सती प्रथा खत्म हुई थी, जो तो उसने वो क्रेडिट ब्रिटिश को दिया कि जो मॉडर्न पीरियड है ना, उसको ब्रिटिश पीरियड का नाम दिया. तो कहीं ना कहीं उसकी पीरियडाइजेशन वाज नॉट करेक्ट. आपको पूछा जा सकता है, वाज जेम्स मिल, ही वाज स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट who divided Indian history into 3 parts, हिंदू, मुस्लिम एंड. उसकी पीरियडाइजेशन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है. कॉलोनियल, व्हेन,
advanced and powerful nation, when advanced and powerful nation dominated the weak and backward nation for its personal benefits or cash rewards और personal motives आप कह सकते हो, that is called हम कहेंगे imperialism, उसे imperialism कहते हैं. Country that was dominated by the powerful country became the colony. वो क्या बन जाती है? Colony. And rule of the, हम कहेंगे imperialist power in that colony is known as colonialism. इसको बिल्कुल सिंपल लर्न रखो कि इंडिया कॉलोनी थी ना ब्रिटिश की, तो इंडिया के लिए वो पीरियड क्या था? colonialism. That period for India came to be known as colonialism because India was under the domination of British. Indian people lost their political freedom. Political power नहीं थी Indians के पास. They were totally socially, economically, politically exploited by the British. Okay? They became slaves under British. So for Indian people, that period came to be known as colonialism because India किसकी कॉलोनी थी? ब्रिटेन की. तो इंडियन के लिए वो पीरियड कौन सा पीरियड रहा? colonialism. अब नेक्स्ट इज ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हमें क्या क्या नहीं बताते अबाउट द लाइफ ऑफ द कॉमन पीपल. Official records do not tell us about the life of the common people. तो अगर हमें कॉमन पीपल के लिए नॉलेज लेनी है तो हमें फिर क्या पढ़ना पड़ता है? हिस्टोरियंस ने क्या पढ़ी? ऑटोबायोग्राफीज, बायोग्राफीज या अकाउंट्स रिटन बाय ट्रैवलर्स. अकाउंट्स रिटन बाय ट्रैवलर्स, वहां से उन्हें उनकी नॉलेज मिली अबाउट कॉमन पीपल. वेयर एज ऑफिशियल रिकॉर्ड कॉमन पीपल के बारे में नहीं बताते. सर्वे क्यों करवाए ब्रिटिश ने? ब्रिटिश केम फ्रॉम द, आप कहोगे फार लैंड, फार अवे एरिया से आए थे. एंड दे केम एज ट्रेडर, बट व्हेन दे डिसाइडेड टू बिकम रूलर, they wanted to collect information about the land where they had to live. That's why they did surveys. अब जिस जगह पे रहना है उस जगह के लिए उन्होंने सर्वे करवाए. यू नो इट कि ब्रिटिश शिमला रहते थे क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट उन्हें सूट ही नहीं किया था, तो ब्रिटिश शिमला चले गए. ऐसा क्यों? सर्वे करवाए, पता चला कहाँ का क्लाइमेट कैसा है, कहाँ पे पॉपुलेशन कितनी है. बिकॉज दे हैड टू, नाउ दे डिसाइडेड टू लिव इन इंडिया एंड दैट्स व्हाई दे डिड सर्वेज. उन्होंने पता लगाया कहाँ का लैंड सरफेस कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, पॉपुलेशन कैसी है. दे प्रेफर टू लिव इन शिमला. कोल्ड था वहाँ का क्लाइमेट क्योंकि वो कोल्ड लैंड से ही आए थे. ब्रिटेन का क्लाइमेट कोल्ड है तो वो ऐसे एरिया से आए थे, तो दे प्रेफर टू लिव इन शिमला. एंड वहां से थ्रू द कम्युनिकेशन मेथड्स दे रन द एडमिनिस्ट्रेशन. वहां रह के एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे, शिमला में रह के एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे. दे प्रेफर टू लिव इन शिमला. उन्होंने सर्वे करवाई टू नो अबाउट द पॉपुलेशन, टू नो अबाउट द लैंड सरफेस, टू नो अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन द एरिया. They did surveys. अब कौन कौन से सर्वेज उन्होंने करवाए? बॉटनिकल सर्वेज, जियोलॉजिकल सर्वेज, आर्कियोलॉजिकल सर्वेज एंड एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वेज, फॉरेस्ट सर्वेज. ये सारे सर्वेज के नाम है जो ब्रिटिश ने करवाए थे. नेक्स्ट, फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रॉब्लम विद द पीरियडाइजेशन ऑफ द जेम्स मिल. तो अभी मैंने बताया क्या प्रॉब्लम थी. He gave importance only to the religion of the rulers. He ignored the religion, culture of the common people. कहीं ना कहीं उसने उनको इग्नोर किया. और उसने मॉडर्निटी का क्रेडिट किसे दिया? ब्रिटिश. क्रेडिट किसे दिया? क्या एंशिएंट पीरियड में इंडिया में डेवलपमेंट्स नहीं हुई? बहुत हुई. गुप्तास का पीरियड कौन सा पीरियड कहा जाता है? गोल्डन पीरियड.
तो उसने तो सारा ही क्रेडिट ब्रिटिश को दे दिया कि जो मॉडर्न पीरियड में हुआ सारा ब्रिटिश पीरियड है। ऐसे तो एंशिएंट पीरियड में भी बहुत डेवलपमेंट हुई। नेक्स्ट, औरंगजेब की डेथ 1707, डेथ ऑफ औरंगजेब 1700, लास्ट एंड पावरफुल मुगल रूलर। औरंगजेब और बहादुर शाह जफर। औरंगजेब लास्ट मुगल रूलर बहादुर शाह जफर। लीडर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 बहादुर शाह जफर। एनफील्ड राइफल्स वर यूज्ड। रिवोल्ट का मेन रीजन बताओ। सिपाहीज रिफ्यूज टू यूज, क्या नहीं यूज किया था उन्होंने? एनफील्ड राइफल्स। They refused to use Enfield rifles which were greased with the fats of cows and pigs. Battle of Plassey took place in 1757. Learn the years. Battle of Plassey 1750 between Nawab Sirajudaulah and British. ब्रिटिश की तरफ से किसने फाइट की? रॉबर्ट क्लाई। एक बात और, आपको मैच द कॉलम भी आने हैं, राइट द इवेंट्स इन सीक्वेंस ऑर्डर भी आना है। और अगर बच्चे आपको ईयर ही नहीं पता होंगे, हाउ कैन यू राइट द इवेंट इन सीक्वेंस ऑर्डर? फिर तो आप बैटल ऑफ बक्सर पहले लिखोगे, बैटल ऑफ प्लासी बाद में लिखोगे। बैटल ऑफ बक्सर इन 1764, ब्रिटिश गॉट दीवानी राइट इन 1765, ब्रिटिश गॉट दीवानी राइट इन। अब मैं बोल रही हूँ राइट इन सीक्वेंस ऑर्डर, लिसन केयरफुली। बैटल ऑफ प्लासी, दीवानी राइट, बैटल ऑफ बक्सर, डेथ ऑफ औरंगजेब। गलत, मनीषा इज टेलिंग रॉन्ग। फर्स्ट ऑफ ऑल डेथ ऑफ औरंगजेब, क्योंकि वो 1707 है। फिर बैटल ऑफ प्लासी 1757, देन बैटल ऑफ बक्सर 1760, अब दीवानी राइट 1765। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगर ईयर्स आते होंगे देन यू कैन डू, अदरवाइज यू कांट डू। मैच द कॉलम, राइट इन सीक्वेंस ऑर्डर तभी कर पाओगे अगर ईयर्स आते होंगे। तो सीक्वेंस ऑर्डर को करते वक्त पहले ईयर्स दिमाग में लाना, तब इसे करना। पपट नवाब, मीर कासिम और मीर जफर। मीर जफर, मीर जफर केम टू बी नोन एज पपट नवाब। ही किसके साथ चीटिंग की थी? डिड चीटिंग विद सिराजुद्दौला। एंड ब्रिटिश ने से क्या बनाया? नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर द डेथ ऑफ सिराजुद्दौला। बैटल ऑफ बक्सर इन 1764। Diwani right, why the Diwani right? British could collect revenue from the richest province of Bengal. From the richest province of Bengal. Next, Tiger of Mysore. Tipu Sultan, father of Tipu Sultan, Hyder Ali. Anglo-Mysore war total कितनी हुई? How many Anglo-Mysore war were fought? Four Anglo-Mysore war were fought between Tipu Sultan and British. Tipu Sultan got defeated at Seringapatam, capital of Mysore, Seringapatam. तो ये याद रखने हैं, ठीक है? Next is Tipu Sultan trained his soldiers. He called the trainer from which country? Very good. France से बुलाया था उसने ट्रेनर. He called the trainer from France. France country अगर पूछेंगे तो France, नहीं तो he called dash trainer, फिर French trainer. Good. Next is आपको बताना है मराठा वास कितनी हुई? एंग्लो वास 4, मराठा वास कितनी? 3. हाउ मेनी मराठा वास? अब आप मुझे बताओगे डायनेस्टीज ऑफ मराठास. मैं 2 बोलूंगी, 2 छोड़ दूंगी. सिंधियाज, होलकर, गायकवाड़ एंड भोंसले. गुड. सिंधियाज, होलकर, गायकवाड़, भोंसले. सिंधियाज, गायकवाड़, भोंसले,
एक और बोलो, होलकर। अगर मैं आप बोलूं इसको सिंधियास, चमन्ना, चौहानास, होलकर, इज इट करेक्ट? तो आप पहचान लोगे ना विच ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, doctrine of lapse was passed by, very good, Lord Dalhousie. In which year? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, इन्होंने सिंपल ही बताया 1848, चलो 46 56। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, हु इंट्रोड्यूस डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स? लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट इज सब्सिडरी अलायंस, वेल्जली। सब्सिडरी अलायंस, लॉर्ड वेल्जली। सब्सिडरी अलायंस, लॉर्ड वेल्जली। लर्न देयर नेम। हु इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट? Very good, Lord Cornwallis. Who introduced, अब बताओ, महलवाड़ी सिस्टम? मैकेंजी। Who introduced रैयतवाड़ी सिस्टम? थॉमस मुनरो। अगर मैं मुनरो सिस्टम बोल दूंगी फिर तो आप कर लोगे, इसीलिए मैंने इसका नाम चेंज करके बोल दिया। Who introduced रैयतवाड़ी सिस्टम? तो किसने किया? थॉमस मुनरो। अलेक्जेंडर रीड एंड थॉमस। अगर मैं बोल दूं इंट्रोड्यूस मुनरो सिस्टम तो बहुत इजी हो जाना आपके लिए। थॉमस मुनरो। एंड हु इंट्रोड्यूस्ड महलवाड़ी सिस्टम? होल्ट मैकेंजी। होल्ट मैकेंजी। काजी किसको कहा जाता है? काजी, जज। इन्फेंट्री मींस, लिसन केयरफुली, फुट सोल्जर्स के सवार्स। इन्फेंट्री मींस, कवेलरी मींस सवार्स, जिसको मैंने बोला हॉर्स राइडर, सवार्स जो होते थे। कवेलरी एंड इन्फेंट्री दोनों बताने चाहिए। इन्फेंट्री मींस फुट सोल्जर्स, कवेलरी मींस। अब आप बताओ, फौजदारी अदालत सिविल कोड और क्रिमिनल कोड? क्रिमिनल कोड। फौजदारी अदालत, फौजदारी अदालत। रानी चन्नम्मा led an anti-British movement in Kittur. Kittur in Karnataka. Rani Channamma led anti-British movement in Kittur in Karnataka. Rani Channamma, याद रहेगा। Next, सिपाही बोलो, सिपाही या फिर सोल्जर। Next is Maratha Kingdom. Kingdoms were located mainly in the east-western, northwestern, southwestern part of India. Southwestern part of Maratha Kingdom was in southwestern part of India. Southwestern part of Hyder Ali and Tipu both were the sultans of Mysore. Both were the sultan of. Next, अब आ जाओ आप। ब्लू रिबेलियन occurred in, ईयर बताना है। 1859, 1850। ब्लू रिबेलियन 1859, 1850। नेक्स्ट इज डिक्कूज वाला, आगे है ना डिक्कूज। बिरसा मुंडा वाज लीडर ऑफ which tribe? Munda tribe. Birsa Munda was the leader of Munda tribe. Next, Zoom cultivation is another name of shifting cultivation. Zoom cultivation is another name of shifting cultivation. Next, who were Dikkus? Outsiders. Dikkus were outsiders. Dikkus were Santals revolt in 1855. Santals
1855 Coles, 1831 to 32 Santals, 1850 Bastar, 1910 Bastar, Santal, 1850 Bastar, 1910 Santals, 1850 संथल्स का रिवोल्ट कब हुआ? बस्तर, 1910 बस्तर, Birsa Munda was born in 1870, 1860, 1850, 1870, 1870 बोला मैंने. 18 in which year Birsa died? 1900. Birsa died in. Santhals revolted in 1855. And next, Bastar revolt took place in 1900. Birsa died in 19. Birsa का birth कब हुआ? 18. It means बिरसा बहुत यंग था जब उसकी डेथ हुई. ओनली कितने साल का था बताओ? 30 years old. बस. बिरसा डाइड इन 1900. बिरसा का बर्थ कब हुआ? संथल रिवोल्ट, बस्तर रिवोल्ट took place in 1900 and Rowlatt Act date and year 10th March 1919. 10th March Bastar revolt, 10th March, sorry, Bastar revolt 1910. Rowlatt Act 10th March 19